Hello students, welcome. Subject is business communication and your chapter 1 is continued. Next chapter 1 में the chapter 1 is business communication, basic forms and models. इसमें हमारा next topic आता है basic forms, medium, methods and channels of communication. If we talk about basic forms or mediums or the methods or the channels of communication, then we have two types of communication. One is the non-verbal communication and second is verbal communication. And in verbal communication further we have two types of communication. One is the oral and the second is the written. Now we talk about non-verbal communication. From the very beginning, various signs are used by human beings and even animals also communicate with each other. This type of communication is known as non-verbal communication because there is an absence of words. This type of communication is made through various signs, symbols, body language, eye contact, etc. Then, an important feature of non-verbal communication is that it is more universal and generally understood all over world in the same manner as against verbal communication, because words may have different meanings at different places and in different languages, but signs and symbols have the same meaning in almost every part of the world. Non-verbal communication जो है जो हम अपनी फीलिंग से, किसी वेरियस साइंस से, बॉडी लैंग्वेज से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पुट योर फिंगर ऑन लिप्स, इट will convey the same meaning to everyone, means keep quiet. Clear? Non-verbal communication has two effective means. First one is sign language, which includes like red and green traffic lights, blowing of sirens, telephone rings, and the second is body language. It is granted with the scientific name kinesis. बॉडी लैंग्वेज का एक साइंटिफिक नेम दिया है एंड दैट इज द काइनेसिस. एंड उसमें हम क्या करते हैं, जैसे वी रेज आवर आईब्रोज, स्माइलिंग, फ्राउनिंग एंड ग्लेयरिंग, क्लैपिंग, शेकिंग हैंड्स. सो ये सारी जो है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं. और आपको बताया है कि नॉन वर्बल, देखिए कि वर्बल में हम जो लिखते हैं वर्ड्स होते हैं या वर्बल में जो हम बोलते हैं वो डिफरेंट मीनिंग हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट, बट साइंस और सिंबल जो है ऑलमोस्ट वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में उसका मीनिंग जो है वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता. देखिए हम इस स्लाइड से देख सकते हैं, जैसे ये हमने फेसेस इसमें बता रहे हैं कि अगर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. इफ समबडी मेक्स हिज फेस लाइक दिस, तो आपको आइडिया हो जाता है उसकी इमोशंस का, उसकी फीलिंग्स का. इसमें कुछ वर्बल नहीं है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. मीन्स ही इज स्माइलिंग, ही इज सैड, he is about he is also sad. And you know the emojis, we use emojis these days, and this sign means no texting and don't use the mobile phone. आप देखते हैं कई जगह रोड्स पर या कई जगह पर ऐसे साइंस होते हैं लाइक दिस साइन. इट मीन्स नो स्मोकिंग. यहाँ पर लिखा नहीं होगा नो स्मोकिंग, बट इफ यू से दिस साइन इट मीन्स दैट no smoking. And if you go to any kind of washrooms anywhere, if this sign is there, then it is for man only, and this sign shows it is for women only, and this sign is means the at the rate, and this is for the internet option. and ये आजकल के टाइम में देखिए बहुत ही कॉमन है. आप देखिए यंग जनरेशन में लोग बहुत इसका यूज करते हैं. This is for the like and this is the dislike sign. And look this, people communicate by the way they walk, stand and sit. Means this is about the body language. Body language भी एक non verbal communication का मीन है, जिसमें कोई भी पर्सन कैसे चल रहा है, कैसे खड़ा है, कैसे बैठा है, ठीक है, तो उसके पोस्चर से, उसके जेस्चर से
आपको आइडिया हो जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। अगर हम और आगे बात करें फेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या फेजेस हैं, जैसे साउंड्स जैसे लाफिंग का साउंड है, कुछ कह नहीं रहे लेकिन एक हंसने की आवाज आती है, तो इट मीन्स समवन इज हैप्पी। द वेज ऑफ टॉकिंग में पॉजेज, स्ट्रेस ऑफ वर्ड्स की किन वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है। पोस्चर मीन्स स्लाउचिंग, जैसे कोई झुक के चलता है या कोई झुक के बैठा है तो इट मीन्स ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क। अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। अनटाइडीनेस, टाइडीनेस, स्मार्टली कोई ड्रेसअप होता है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, अपीयरेंस में आता है। दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हेड मूवमेंट्स जैसे अगर आप किसी से बात करते हैं एंड इफ समवन इज नोडिंग मीन्स इट मीन्स एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि ही इज लिसनिंग टू यू। एंड हैंड मूवमेंट्स, हैंड्स को आप वेव करते हैं, किसी को दूर से आपने देखा, इफ यू सी योर फ्रेंड तो आप उसको दूर से वेव करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई मूवमेंट, विंकिंग, facial expression, body contact like shaking hands, closeness means invading someone's space, आप किसी के स्पेस को इन्वेड करते हैं। क्लोजनेस मतलब आप जैसे किसी के साथ खड़े हैं तो आप उसके कितना क्लोज है, प्रॉक्सिमिटी कितनी है, एंड दैट प्रॉक्सिमिटी डिसाइड्स द टाइप ऑफ रिलेशनशिप एंड द काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आप किसी का जो स्पेस, एक हर एक का एक पर्सनल स्पेस होता है, आप उसको उतना स्पेस देते हैं। देखिए जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ खड़े होते हैं, ठीक है, आप जितनी क्लोजनेस के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े होते हैं उतनी क्लोजनेस से आप अपने टीचर्स के साथ नहीं हो सकते या किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं हो सकते, उतना क्लोजनेस नहीं होती। मीन्स कि एक स्पेस आप मेंटेन करके रखते हैं, तो वो स्पेस जो मेंटेन किया है एक समवन का जो होना चाहिए एक, तो वो भी आपका एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। देन सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक गन शूट इन द एयर मीन्स स्टार्टिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ रेस एंड ऑल्सो पे रिस्पेक्ट टू द मार्टियर्स। आपने देखा होगा कि अगर कोई रेस स्टार्ट करनी होती है तो गन शूट करते हैं एयर में, या जो कोई शहीद होता है उसके रिस्पेक्ट में भी गन शूट किया जाता है। नोडिंग ऑफ हेड, आप अपने सर को हिलाते हैं, कि किस लिए हिला सकते हैं, टू एग्री और टू अप्रूव, इट मीन्स ओके दैट यू कैन डू इट। एंड शेकिंग ऑफ इंडेक्स फिंगर, आप जैसे किसी को उंगली दिखाना, इट मीन्स टू इशू वार्निंग, किसी को आप वार्निंग दे रहे हैं फिंगर, इंडेक्स फिंगर शो करके। एंड बेल द होलीनेस एंड द प्योरिटी ऑफ द टेम्पल, अगर आप किसी मंदिर की घंटे सुनते हैं। दैन सायरन, बेल और सायरन में फर्क है, ठीक है ना। एक मंदिर की जो बेल है और एक सायरन बजता है, जब सायरन बजता है इट मीन्स दिस इज द वार्निंग साइन। क्लैपिंग मीन्स प्रेजिंग समवन, पैटिंग ऑन द बैक, टू एडमायर, किसी की पीठ को थपथपाना। फ्लाइंग किस करना, एक्सप्रेसिंग लव फॉर समवन क्लोज टू योर हार्ट। शोइंग अप द थंब, विशिंग गुड लक। टर्निंग अप द नोज, जैसे आप अपना नाक चढ़ाना जिसे आप कहते हैं, मीन्स डिसलाइकिंग द डिश और रिजेक्टिंग द ओपिनियन, जैसे आपको जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती दैट यू टर्न अप योर नोज। एंड सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर लाइक रबिंग द नोज, nervous, puzzled, raising an eyebrow means thinking that if it is impossible, then placing the feet on the table, जैसे आप कोई टेबल पे ऊपर पैर रख के बैठता आपने मूवीज में देखा होगा, मीन्स ही इज द बॉस हेयर, अपना सुपीरियरिटी दिखाने के लिए। रबिंग हैंड, एक्साइटेड, आप जब अपने हैंड्स को रब करते हैं मीन्स यू आर एक्साइटेड। एंड और क्या हो सकता है, यू मस्ट बी फीलिंग कोल्ड। रेड क्रॉस साइन आप देखते हैं, रेड क्रॉस साइन क्या होता है, इट इज द साइन ऑफ हॉस्पिटल और अ डॉक्टर। तो ये सभी हमारे क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। देन टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है, कम्युनिकेशन बाय बॉडी लैंग्वेज अभी हमने डिस्कस किया, जेस्चर्स, पोस्चर,
facial expression, human behavior, touch, ड्रेस एंड ग्रूमिंग, प्रॉक्सिमिसीज, प्रॉक्सिमिसीज अभी आपको बताया था कि कितनी प्रॉक्सिमिटी से कि क्लोजनेस, एंड कम्युनिकेशन थ्रू साइंस एंड सिंबल्स, चार्ट्स, मैप्स एंड ग्राफ्स, पोस्टर्स, कलर्स, साइलेंस। और आपको बताया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अफेक्ट्स एवरी फैक्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप, सॉरी लाइफ रिलेशनशिप, social interactions and careers. Non-verbal communication plays greater role than the verbal communication. If you note carefully and minutely the various style of walking, talking and positioning of hands, you will be able to read language which though silent speak volume about the individual. ये देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल से ज़्यादा आपको बताता है बहुत किसी पर्सन के बारे में कि वो कैसे बात कर रहा है, कैसे चल रहा है, उसके हैंड्स की पोजीशन क्या है। तो हालांकि वो साइलेंट है, लेकिन साइलेंट होने के बाद भी है वो पर्सन कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन आप उसके स्टाइल से उसकी पर्सनालिटी का और या उस इंडिविजुअल के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। Non-verbal behaviors are often better indicators of true thoughts and feelings than spoken language. And look at this slide. Everything communicates, including material objects, physical space, and time system. Although verbal output can be turned off, non-verbal cannot. Even silence speaks. कि हम वर्बल का जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको हम बंद कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत कुछ बताता है, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, हर ऑब्जेक्ट बात करता है, फिजिकल स्पेस बात करता है, टाइम बात करता है, इवन द साइलेंस स्पीक्स। और आप ये देखिए कि बच्चा जब छोटा है, इन्फेंट है, commonly non-verbal communication is learned shortly after birth and practiced and refined throughout a person's lifetime. Children first learn non-verbal expressions. बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं? नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस। आप देखते हैं ना, आप बच्चे को जीभ दिखाते हैं तो बच्चा भी आपको टंग दिखाने लगता है। आप जैसे जैसे फेस के एक्सप्रेशन बनाते हैं तो बच्चा भी वैसे ही एक्सप्रेशन बनाता है, क्योंकि अभी उसने लैंग्वेज उसको नहीं आती, उसका वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, बट वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है बहुत जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट इज द मोस्ट डोमिनेंट एंड द रिलायबल फीचर ऑफ द फेस इज द आईज। कि आईज जो है कभी झूठ नहीं बोलती, आप चाहे झूठ बोल रहे हो, आपका वर्बल कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आईज जो है वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेट करती है नॉन वर्बल तरीके से। तो आईज जो है वो बहुत ही डोमिनेंट और रिलायबल फीचर है। आईज प्रोवाइड अ कांस्टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। आंखें जो है वो बहुत कुछ बताती हैं। Referred to as the windows of the soul, the eye serve as the major deciding factor in interpreting the spoken word. कि आईज जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सोल का विंडो है, कि आपके दिल में, आपके अंदर में जो है वो चीज़ें आपको आप हो सकता है कोशिश करें कि वो चीज़ें बाहर शो ना हो, लेकिन आपकी आईज जो है उनसे वो शो हो जाता है। Then a facial expression may be unintentional or intentional. Next to words, human face is the primary source of information for determining as individual internal feelings. तो फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ह्यूमन यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिकॉज वर्ड्स हैव लिमिटेशन। वर्ड्स हमारे पास लिमिटेड है, लिमिटेशंस होती है। देर आर सेवरल वेज वेयर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव देन वर्बल। देखिए अगर कोई आपका फ्रेंड परेशान है, दुखी है, आप उसको जाके कहें कि आप उसको कहते रहे कि आप उसके लॉस से आपको दुख हुआ है, दैट यू आर सॉरी फॉर हिज लॉस, और उसके परेशानी में आप परेशान हैं, आप ये इतना कहेंगे तो उससे वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जस्ट अगर आप जाएं और आप एक उसको गले लगाएं, उसके प्यार से बस जस्ट यू होल्ड हिज हैंड, ठीक है। अगर आपने सिर्फ उसका हाथ भी पकड़ा है या आपने उसको गले भी लगाया है तो भी वो जो आपका एक कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा वर्बल कम्युनिकेशन से। एंड
Non-verbal signals are powerful. Non-verbal signals powerful कैसे? Non-verbal cues usually express inner feelings. वो inner feelings जैसे अभी आपको बताया कि facial expression है, eyes है, posture है, gestures है, body language है, तो ये हमारी inner feelings को show करते हैं. जैसे आप कहते हैं कि अगर कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है और आपने देखना है कि वो झूठ बोल रहा है, तो क्या होता है, कई बार जो पर्सन झूठ बोलता है वो अपनी आईज को बार बार झपकता है, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है. तो आप चाहे वो कुछ कह रहा है लेकिन अगर वो झूठ है, मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन वो सही नहीं है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो वो कर रहा है कि वो जल्दी फास्ट बोल रहा है, जल्दी जल्दी बोल रहा है, आंखें झपका रहा है, पलके झपका रहा है, तो हमें पता चल जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कि उसकी इनर फीलिंग्स क्या है. Non-verbal messages are likely to be more real because non-verbal behaviors cannot be controlled as easily as spoken words. जैसे हम अपने बोलते हुए वर्ड्स को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हम अपने नॉन वर्बल बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट दैट इजी. उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए. बहुत ही कोई ऐसा प्रोफेशनल होगा जो अपने नॉन वर्बल बिहेवियर को भी कंट्रोल करेगा, बट एक ह्यूमन बीइंग के लिए ये इतना ईजी नहीं है. Non-verbal signals can express feelings inappropriate to say loud. Social etiquette limits what can be said, but non-verbal cues can communicate thoughts. कि social etiquettes जो है ना, मतलब कि socially जो हमें कहा जाता है कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी या करनी है, तो वो चीज़ें हमें कंट्रोल करती हैं कि हमें ऐसा शो नहीं करना, हमें इसको ये बात नहीं कहनी, लेकिन वो हमारा नॉन वर्बल जो एक कम्युनिकेशन है उसके थ्रू हम वो बता सकते हैं. A separate communication channel is necessary to help send complex messages. तो ये हमारा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का. Sorry. Next we talk about the advantages of non-verbal communication. Non-verbal communication के advantages क्या है? It is effective. How it is effective? Sometimes it becomes very difficult to convey a message by using words. In such situation, face expressions, gestures, etc. prove to be more effective means of communication. कि कई बार हमें कोई बात कहनी मुश्किल होती है और बड़ा मुश्किल होता है मैसेज कन्वे करना, तो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं. जैसे आपने वो मूवी देखी थी ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, कि अगर कोई परेशान है, कोई ज़्यादा दुखी है, सैड है, तो आप उसको जाके उसको समझाएंगे, कुछ कहेंगे, इट्स बेटर कि आप उसको अगर एक जादू की झप्पी दे देंगे. इट्स अ नॉन वर्बल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है ना. तो जादू की झप्पी क्या होगी? दैट इज़ मोर इफेक्टिव दैन वर्ड्स. आप किसी जैसे आपके घर में डॉग है, आप किसी पेट, आपने कोई पेट रखा है, तो आप उससे बात नहीं कर रहे, आपने जस्ट उसको पैट किया, उसको हाथ लगाया, उसको आप प्यार से टच कर रहे हैं, तो दैट इज मोर इफेक्टिव काइंड ऑफ कम्युनिकेशन देन इज द रिलायबल. In case of non-verbal communication, an immediate feedback is received from the person communicating with each other. Moreover, as it is difficult to hide an internal feeling, so the communication becomes more reliable. कि देखिए साथ के साथ उसका फीडबैक मिल जाता है. अगर आप किसी को देख रहे हैं और अगर स्टेयर कर रहे हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये स्टेयर कर रहा है, तो वो भी अपना एक फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा देगा कि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा, या वो फ्राउनिंग करेगा, आईब्रोज को चढ़ाएगा. तो इस तरीके से वो फीडबैक जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का साथ के साथ मिल जाता है. और क्योंकि ये आपकी इनर फीलिंग्स होती हैं, और इनर फीलिंग्स को इजली आप हाइड नहीं कर सकते. Then better understanding. If a person learns to read the other people's nonverbal messages, only then he will be able to interpret the attitudes and intentions more accurately. The facial expressions and the body language of the persons being communicated makes the speaker understand if he is successful in conveying his message in an effective manner or not. It leads to a better understanding. कि
अगर किसी को बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता है कि वो जेस्चर्स आसानी से पढ़ सकता है, वो फेशियल एक्सप्रेशंस को आसानी से पढ़ सकता है, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन की बजाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा आसानी से उस पर्सन के बारे में समझ सकता है, या वो पर्सन क्या कहना चाह रहा है उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। दैन इज द इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल में क्या है? The communication can be made more influential by making use of various forms of non-verbal communication, like a high pitch of voice proves the more influential by giving an order. कि देखिए, किसी चीज़ को अपने कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए, जैसे हम एक सिंपल बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जाइए अपना काम पूरा करके लाइए, ठीक है, तो ये एक सिंपल कम्युनिकेशन है। लेकिन मैंने अगर अपने पिच को थोड़ा तेज कर लिया, मतलब मैं अगर ज़्यादा ज़ोर से बोलती हूँ कि जाइए अपना काम पूरा करके आइए, तो ये एक इस तरह से मेरा कम्युनिकेट करना, ये एक ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो जब हम अपने वॉइस की पिच को हाई कर देते हैं, तो वो हम उसको अपने मैसेज को जो हम दे रहे हैं, तो वो एक ऑर्डर में चेंज हो गया, तो उसको हमने ज़्यादा प्रभावी बना दिया। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे मैसेज को प्रभावी बनाने के लिए भी जो है सहायता करता है। देन असेंशियल फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक अ बिजनेस मैन हैज़ टू डील विद वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सन, सो द वे ऑफ टॉकिंग, सिटिंग एक्सेट्रा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज सक्सेस। कि देखिए, एक बिजनेसमैन अकेला तो काम नहीं कर रहा, उसको सोसाइटी में रह के काम करना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, सोशल होना पड़ता है। तो उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, सिटिंग क्या है? देखिए, कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए उसने बैंक में काम करना है, या बैंक से लोन लेना है, बैंक से कोई सर्विस लेनी है, या उसके पास कस्टमर आता है, अगर वो अच्छे से ड्रेसअप है, ठीक है, उसको सिटिंग वहाँ पे जो बात अच्छे से कर रहा है, उसका तरीका बड़ा अच्छा है बात करने का, ग्रीट करने का, तो ये चीज़ें, वो जो नॉन वर्बल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो उसके सक्सेस में ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, दैट इज़ वेरी मच इफेक्टिव, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अगर हमें इतने एडवांटेजेस हैं, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम 100% सही नहीं हो सकती, उसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। तो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सॉरी। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? सबसे पहले है मिसअंडरस्टैंडिंग। Sometimes the message is not understood by the receiver in the same sense which is conveyed by the sender. As a result, it may lead to misunderstanding and dispute. कई बार वो उस तरीके से नहीं समझ पाता जैसा कि सेंडर ने भेजा है, ठीक है, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। वो कैसे, बताइए कोई एग्जाम, वो कैसे होगा कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये हो सकता है कि कई बार हम नोट करते हैं कि हमने किसी बात को यस करने के लिए अपने नोट किया यस में, ठीक है, अपना अगर हम सिर हिलाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, किस जगह पे अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं या और कहीं किसी कंट्री में, तो वहाँ पे नोट करने का मतलब मना करना होता है, ठीक है। अगर सिर को हिलाया, लेकिन अगर वो हो सकता है कि उसने ना में सिर हिलाया हो और हमने सोचा कि दैट ही सेड यस, सो दिस इज अ काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पॉसिबल हो सकता है। देन इज द लैक ऑफ सीक्रेसी। इसमें हम अपने कम्युनिकेशन को, अपनी बातचीत को सीक्रेट नहीं रख सकते, बिकॉज एज द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, so the intention of persons communicating with each other are automatically revealed by their face expression and gestures, so it becomes very difficult to maintain the secrecy. मतलब कि जो बात है वो आपके फेस पे आ जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन वैसे हो जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाती है, जेस्चर्स वैसे हो जाते हैं, तो यहाँ पर किसी चीज़ को सीक्रेट रखना जो है वो सही नहीं है।
देन नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग मैसेजेस, अगर बहुत लंबे मैसेज देने हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नो लीगल वैलिडिटी, लीगल वैलिडिटी तो है ही नहीं क्योंकि इसमें कोई प्रूफ नहीं है, रिटन प्रूफ नहीं है। वैलिडिटी मतलब कि उसको लीगल प्रूव करने के लिए हमारे पास उसका कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता। इट फेल्स टू डिस्कस पास्ट इवेंट्स एंड आइडियाज, कि पास्ट में क्या हुआ है, क्या इवेंट हुआ था, क्या आइडियाज थे, क्या इससे ये हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं बता सकते। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कम्स वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? When communication is made through words, जब हम words के थ्रू, बातचीत के थ्रू अपना communication करते हैं, that is the verbal communication. Generally these words have the meanings and which are the same for each and every person involved in the process, कि जो process में मतलब communication के process में person है उसके लिए उन words का meaning same होता है। This communication process involves the proper usage of words denoting the similar set of simple signs between the sender and the recipient, and it is understood by all of them in the same sense. तो जो भी सेंडर है और रिसीवर है दोनों ही उसको सेम सेंस में रिसीव करते हैं, सेम सेंस में समझते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस इन अ वर्बल फॉर्म, और किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब बिजनेस कम्युनिकेशन किया जाता है या फॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो किस टाइप का होता है? वर्बल कम्युनिकेशन। देन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, then since words can be in a spoken or a written form, so verbal communication can be divided into two forms, oral and written. तो जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो वर्ड्स हमारे ओरल कम्युनिकेशन में भी हो सकते हैं और रिटन कम्युनिकेशन में भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल कम्युनिकेशन, द टर्म रेफर्स टू द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू माउथ। ओरल मीन्स माउथ, जो हम वर्ड्स बोलते हैं। Similarly, oral communication is made through the spoken words. The communication which employs speech is known as the oral communication. Oral communication कि जब हम बोलते हैं, speech जब हमारी होती है, that is the oral communication. In this, sender and the receiver exchange their ideas and thoughts, opinions by interacting with each other through spoken words. But oral communication is also divided into two forms. One is the face-to-face communication and second is the mechanical or electronic communication. ओरल कम्युनिकेशन दोनों तरीके से हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है और मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो अगर हम फेस टू फेस की बात करें तो आमने सामने बैठकर हो सकता है, ठीक है। आजकल आप देखते हैं कि वीडियो कॉल होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आजकल मीटिंग्स भी वीडियो कॉल पर होती हैं, तो वो क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। और साथ के साथ आप उसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, क्योंकि वहाँ भी वो फेस टू फेस कर रहे हैं या हम मैसेजेस ड्रॉप कर देते हैं। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के अंदर हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं, रिटन भी है और ओरल भी है, मतलब आप बोलकर भी अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? वन इज द इकोनॉमिकल। ओरल कम्युनिकेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड मनी, ठीक है। टाइम और मनी के केस में ओरल कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी इकोनॉमिकल है। एंड बाय यूजिंग द मीन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन के क्या मीन्स होते हैं? टेलीफोन है, आजकल आपने देखा है, वो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है व्हाट्सएप का, कि उसमें भी हम भेज सकते हैं अपना मैसेज भेज सकते हैं, बोलकर भी भेज सकते हैं। तो बहुत सारे आजकल ऐसे मेथड्स हैं जो कि इकोनॉमिकल हैं, ज़्यादा हमें उसमें इतना खर्चा नहीं आता, दैट इज़ एट अ वेरी लो कॉस्ट। देन इमीडिएट रिस्पॉन्स। हमें ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है? द स्पीकर कैन हैव द इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द बायर बाय ऑब्जर्विंग हिज बॉडी जेस्चर्स और फ्रॉम द वे ऑफ हिज टॉकिंग, ठीक है। देन मोर इफेक्टिव, इट इज़ यूनिवर्सल दैट द स्पोकन वर्ड्स आर मोर इफेक्टिव दैन रिटन वर्ड्स। जो आप बोलते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं रादर दैन
जो आप लिखते हैं। A message conveyed through spoken words stays in the mind and the listeners for a pretty long time. The use of signs and gestures can make the communication more effective. This is an effective form of communication which leaves behind an impression on the receiver. देन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है ओरल कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबल है। जैसे आप बात करते हैं तो आपको साथ साथ बात करते करते सामने वाले से पता चल जाता है कि उसका क्या रिएक्शन है, और उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप अपना कम्युनिकेशन में चेंज कर सकते हैं। जो आप बात कहना चाहते हैं उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी टोन में, पिच में। तो ये सब चेंज करके आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। देखिए बिजनेस के अंदर जब कोई भी बार्गेनिंग की जाती है या कोई भी डील की जाती है, तो वहाँ पे अगर ओरल कम्युनिकेशन होता है तो वो फ्लेक्सिबल रखा जाता है। जैसे बात करते हुए कि दूसरी पार्टी क्या चाह रही है, क्या कहना चाहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कम्युनिकेशन को चेंज कर सकते हैं। देन इज द मोटिवेशन। Oral communication proves to be very helpful in the motivation of the employees of an organization. Through oral communication, a direct contact is established between the employer and the employees. तो oral communication से employer और employees में एक अच्छा contact बन जाता है, and that brings the subordinates and the superiors closer and builds a healthy climate in the organization. दैन द रिमूवल ऑफ डाउट्स। कोई भी डाउट है तो वो डाउट को हम बातचीत करके अपना रिमूव कर सकते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ये भी सही है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एज ओरल कम्युनिकेशन इज अ क्वाइट इकोनॉमिकल एंड अ लॉट ऑफ टाइम इज सेव ड्यू टू दिस। कि इकोनॉमिकल है, बातचीत करके हम अपनी बात को, टाइम को सेव कर रहे हैं, ठीक है, और कॉस्ट भी इसमें कम आती है। This save time can be devoted to some other productive activities. तो वो जो हमने वहाँ पे टाइम को अपना सेव किया है, टाइम हम बाकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं। एंड हेल्पफुल इन एड्रेसिंग लार्ज क्राउड। और बहुत सारे अगर लोग हैं, बहुत लार्ज क्राउड है, तो वहाँ पे अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, तो कम्युनिकेशन जो है, ओरल कम्युनिकेशन, दैट प्रूव्स मोर हेल्पफुल देन ऑल अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ज़्यादा लोगों में तो आप देखिए, अगर जैसे लाइक इन अ क्लास अ टीचर इज़ देयर एंड द स्टूडेंट्स आर देयर, तो टीचर हर बात लिख लिख के एक एक बच्चे को नहीं बताता। तो टीचर क्या करता है, वहाँ पे लेक्चर देता है। लेक्चर देने का मतलब दैट इज़ अ काइंड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो टीचर अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट्स को समझा सकता है। ऐसे ही एक लीडर है जो अपने फॉलोअर्स से बात करता है, ऐसे ही एक मैनेजर है जो अपने सबॉर्डिनेट से बात करता है, ऐसे ही एक कंपनी का आप कह सकते हैं सीईओ हो सकता है, एमडी हो सकता है, जो कि एक मीटिंग के अंदर बातचीत करके कंपनी की पॉलिसीज को डिस्कस कर सकते हैं। मतलब लार्ज क्राउड के अंदर ओरल कम्युनिकेशन जो है, दैट इज क्वाइट हेल्पफुल एंड इफेक्टिव। बट अगेन ओरल कम्युनिकेशन के भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है? अनसूटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस। लेंथी मैसेजेस के लिए अनसूटेबल है, क्योंकि आप बहुत लंबी चौड़ी बातचीत, जो बहुत चीज़ें बतानी है, जैसे पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, एक कंपनी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब बता के नहीं, मतलब बोल कर नहीं। जैसे एक टीचर ने भी आपको लेक्चर दिया, अब टीचर भी आपको सारी बात नहीं बता सकता, उसके लिए यू हैव टू बाय द बुक्स। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, उनको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही लेंथी मैसेजेस के लिए ओरल कम्युनिकेशन जो है, दैट इज नॉट सूटेबल। नॉट फिट फॉर लीगल पर्पस। लीगल पर्पस के लिए भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है। बातचीत खत्म हो गई तो कोई आप उसका प्रूफ नहीं रख सकते। लेकिन आजकल रख सकते हैं। आजकल क्या होता है कि रिकॉर्डिंग हो जाती है। अगर आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं या फ़ोन पे भी नहीं कर रहे हैं, फेस टू फेस भी कर रहे हैं, तो आजकल स्मार्टफोन है सबके पास, तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन को अगर इस तरह से रिकॉर्ड कर लिया जाए तो वो लीगल पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। और अगर सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन बातचीत की है तो वो लंबे टाइम तक जो है याद नहीं रहेगा। वर्ड्स जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम एक पर्सन भूल जाता है। देन टाइम कंज्यूमिंग। टाइम भी कई बार ज़्यादा लगता है क्योंकि
एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझाना है, डिफरेंट वेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, हर एक पर्सन को डिफरेंट तरीके से समझाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए। रिक्वायर स्पेशल स्किल चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट। हर कोई जो है हर किसी के पास ये आर्ट नहीं होता। स्पेशल skill and a command on language is necessary for making oral communication in an effective manner, but unfortunately very few people possesses this skill। कि एक आर्ट होना चाहिए, इफेक्टिव मैनर में अपनी बात कहनी आनी चाहिए, एक लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए, लेकिन सभी लोगों के पास ये नहीं होता। तो सभी लोगों के पास नहीं होता तो वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। देखिए, कोई भी लीडर की अगर हम बात करें तो एक सक्सेसफुल वही लीडर होता है जो अपने बात को अच्छे से कह सकता है, उसके पास लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कमांड है, तो वही चीज़ें जो हैं उसके फॉलोवर्स को इफेक्ट करती हैं। Then not fit for all types of messages. Some messages are there which are technical and numerical in nature, तो ऐसे messages के लिए oral communication जो है वो सही नहीं है। Then lack of responsibility and written proof. Oral communication or messages are not recorded and so no written proof is kept for future reference। तो future reference के लिए हम कोई ऐसा proof नहीं रख सकते, ठीक है। और किसी पर्सन को उसकी गलतियों के लिए या इनएक्यूरेसी के लिए ओरल कम्युनिकेशन में हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इट इज़ पॉसिबल इन 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 दिस एरा, ठीक है, ये आजकल के टाइम में ये पॉसिबल है क्योंकि रिकॉर्डिंग्स हम कर सकते हैं। Next type of communication is the written communication. A message is conveyed with the help of words in a written or printed form, and it requires conscious efforts. In modern business world, most of the communication is made in a writing form through letters, reports, newspaper, magazines, journals, etc. तो कोई भी मैसेज अगर हम लिख कर दिखाते हैं जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। और रिटन कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। न्यू फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, लेकिन आजकल हमारे पास नई नई रिटन कम्युनिकेशन की क्या फॉर्म आ रही हैं, ईमेल है, टेक्सटिंग है, जैसे मैसेजेस टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, टेलीग्राम है, मैसेंजर है, ट्विटर है, ये सारा क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है। The reason of using written communication by a business organization is that it facilitates in keeping proof and record of communication। और business organization के अंदर written communication इसलिए यूज किया जाता है ताकि इससे हम proof भी रख सकते हैं और communication का record भी रख सकते हैं। Next comes the advantages of written communication। written communication के क्या advantages हैं? एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी कैसे है? रिटन मैसेज फंक्शन इज अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड रेफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सो द राइटर ड्राफ्ट इज वेरी केयरफुली विच मेक्स इट मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू एन ओरल कम्युनिकेशन। क्योंकि उसको लंबे समय तक उसको पता है कि ये एक रेफरेंस की तरह रखा जाएगा, परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो वो उसको बहुत ही केयरफुली ड्राफ्ट करता है, मैसेज को बनाता है, ठीक है। लीगल वैलिडिटी है क्योंकि प्रूफ रख सकते हैं, तो इसको ये परमानेंट नेचर का होता है, तो इसको हम एक लीगल मैटर्स के अंदर ये ऑथेंटिक प्रूफ माना जाता है। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मैसेजेस। मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड मे बी of various types from the size and the nature point of view. So written communication proves to be suitable for all types of messages, be these short or lengthy in size and simple or technical in nature। Next is the accountability। accountability means responsible ठहराना किसी को। The advantage of accountability is the most important advantage of written communication। If any dispute regarding the communication takes place, then the writer or the sender can easily held responsible for it। Economical है। Written communication does not cost much, especially in case of when a message is sent at distance place। Written communication proves to be more economical as compared to ओरल कम्युनिकेशन। अगर दूर भेजना है तो हम रिटन कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा हमें इकोनॉमिकल पड़ता है। easy retention। It has been
The messages conveyed through the oral communication are forgotten by the listener very soon. क्योंकि oral communication में वर्ड सुने हैं वो फिर याद नहीं रहते ज़्यादा समय तक, लेकिन written messages जो हैं that can be retained in the memory for a pretty long time because written communication is permanent. तो देखिए जैसे अभी मैंने आपको बोला, लेकिन आपको ये इतना याद नहीं रहेगा जब तक आप बुक से नहीं पढ़ेंगे. जब ये चीज़ें आप अपने बुक से पढ़ते हैं, रीड करते हैं, जहाँ पे रिटन है आप उसको पढ़ते हैं, तो आप वो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रिटेन करती हैं चीज़ें. ठीक है. तो इजी रिटेंशन रहता है थ्रू रिटन कम्युनिकेशन. Then is the reliable. In case of written communication, the writer or the sender bears the whole responsibility of the message conveyed. So a written message is prepared quite carefully, which makes it more reliable. Then presence of parties is not necessary. कि जो पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों को एक टाइम पे होना ज़रूरी नहीं है. सेंडर अपना मैसेज, जैसे उसने लेटर लिखा, उसने ईमेल कर दिया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर दूसरी पार्टी भी प्रेजेंट हो. उस पार्टी को वो मैसेज मिल जाता है और जब भी उस पार्टी को टाइम मिलता है वो उस मैसेज को रीड कर सकता है. सो in written communication it is not necessary for both the parties, the writer or the writer or sender या reader, to be present at the same time, because a message can be written at one time whereas it can be read on some other time. Clear? Then all recipient receive the message all recipient receive the same information. कि जब हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो सभी जिसको भी हमने वो कम्युनिकेट किया है थ्रू रिटन कम्युनिकेशन, सबको सेम इंफॉर्मेशन मिलती है. उस इंफॉर्मेशन को किसी तरीके से जो है मिस इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता. ठीक है. तो बहुत सारी पार्टीज को अगर इंफॉर्मेशन देनी है और सेम इंफॉर्मेशन देनी है, वी कैन यूज द रिटन कम्युनिकेशन. परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये परमानेंट मीन्स है, इसको हम क्योंकि इसमें एक प्रूफ होता है, इसको हम रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और जैसे आपको बताया कि लीगल वैलिडिटी भी इस कम्युनिकेशन में रहती है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. And the next is disadvantages of written communication. Disadvantages सबसे पहले क्या है इसका? demerit, not suitable for illiterates, मतलब कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते, इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, उनके लिए ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि उनको अगर आप कुछ लिख कर देंगे दे विल नॉट बी एबल टू रीड इट आउट. ठीक है. Then the fear of leakage and misuse of information. The message is transmitted from the sender to the receiver through a network of various persons or departments. As a result, there always remains a fear of लीकेज एंड द मिसयूज ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में जो मैसेज है वो कई पार्टी से होके जाता है, तो ये लगता है कि कई बार उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया जा सकता है. रिक्वायर्स एफिशिएंसी, कि रिटन कम्युनिकेशन के अंदर अ स्पेशल स्किल और एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राफ्टिंग द रिटन मैसेज. इफ अ रिटन मैसेज इज नॉट ड्राफ्टेड केयरफुली इट मे बी मिसअंडरस्टूड एंड मे रिजल्ट इनटू लीगल डिस्प्यूट्स. दैन नो इमीडिएट फीडबैक, जब आप किसी को रिटन इन्फॉर्मेशन देते हैं, रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, तो इमीडिएट फीडबैक उसका नहीं मिलता, क्योंकि जिस टाइम पर सेंडर ने मैसेज को सेंड किया है, हो सकता है रिसीवर उसको किसी और टाइम पर रिसीव करे, किसी और टाइम पर उसको पढ़े, ठीक है ना, एनकोड करे. तो वो जो उसने डिकोड किया है, एक पार्टी ने डिकोड किया है, एक ने एनकोड किया है, तो उनकी टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, तो इमीडिएट फीडबैक जो है वो नहीं मिलता. लेस इफेक्टिव, the process of written communication consumes a lot of time. The time gap between the sending and the reception of the message reduces its effectiveness. क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम गैप आ जाता है, तो टाइम गैप्स की वजह से वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो सकती है. नो पर्सनल टच, कोई पर्सनल टच नहीं होता. In the absence of direct interaction, a personal touch cannot be given in written communication, so the written communication is not suitable for conveying the messages that involves emotions.
अगर इमोशंस हमें बतानी है तो तब रिटन कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता. बट समटाइम्स इट हैपन्स लाइक सम if someone writes a love letter, so the emotions can be written in an effective manner. So jokes apart, next is expensive. Written communication is expensive in terms of money and uh, cost a lot to the organization. कि वो मनी के रिगार्डिंग जो है काफ़ी एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजेशन को पड़ता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पेपर एज वेल एज द टाइपिंग कॉस्ट. ठीक है. सो बिल्ड्स अ क्लस्टर ऑफ पेपर्स एंड फाइल्स. कि जितना ज़्यादा रिटन कम्युनिकेशन होता है उतना ज़्यादा, जैसे आप कहते हैं ना कि कागजी काम, कि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो पेपर वर्क इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि पेपर्स और फाइल्स का क्लस्टर एक ढेर लग जाता है. तो वो एक एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं तरीका है रिटन कम्युनिकेशन का. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में इमीडिएट फीडबैक नहीं होता, तो क्लैरिफिकेशंस जो है वो इमीडिएट पॉसिबल नहीं होती. सो रिटन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो लेस फ्लेक्सिबल, या आप कह सकते हैं देयर इज अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन written communication. So these are the disadvantages of written communication. तो ये हमने कम्युनिकेशन की टाइप्स के बारे में पढ़ा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर. ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट है यहाँ तक. सो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट हम अपना करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.